A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है. And along with this, we will also share some very crucial practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के ही तमाम फैक्ट्स पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और लगातार निरंतर इनके आंसर्स शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 30 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact of today is associated with 1886 when Muthulakshmi Reddy was born. अर्थात मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म आज के ही दिन हुआ था. वह एक जानी मानी भारत की मेडिकल प्रैक्टिशनर और समाज सेवक थी. उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से था और इंग्लैंड से उन्होंने मेडिसिन में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, परंतु समय के साथ साथ अपनी ल्यूक्रेटिव मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और सोशल वेलफेयर में बेहद यादगार योगदान दिया. शी वॉज highly inspired by Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu and Annie Besant, and she took up the cause of women emancipation and upliftment in Indian society. She was appointed to the Madras Legislative Council in 1926 and later she also became its first deputy president. इसके साथ वह भारत की पहली महिला लेजिस्लेटर भी बनी. She wrote a very famous book by the name of My Experience as a Legislator, जिसमें उन्होंने एक विस्तृत वर्णन किया है about her various social services. She also passed a resolution to establish special hospital for women and children. She was later the president of the All India Women's Conference as well as उन्होंने रोशनी नामक एक जर्नल की एडिटरशिप भी संभाली, उसका संपादन किया. दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट जर्नल ऑफ द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस. इस पद पे उन्होंने फैसिलिटेट किए कई होम्स और हॉस्टल्स फॉर ऑर्फन गर्ल्स एंड डेस्टिट्यूट वुमेन. इनफैक्ट उनका एक और बड़ा ही सराहनीय योगदान था, दैट वॉज इन passing a legislation to abolish the Devdasi system. And she also played a key role in having compelled the government to increase the minimum age of women for marriage in Indian society. She was, in fact, only female member of the Hartog Education Committee, जिसने अपनी रिपोर्ट को वर्ष 1929 में सबमिट किया था, and which had recommended several educational reforms and mass education in India. इस कमिटी के सदस्य के रूप में she recommended many educational reforms that were important for women and also strongly supported women inclusion in any educational programs that were to be introduced in India. She had established the Cancer Institute WIA, जिसे अद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से भी बुलाया जाता है, which was a very important contribution made by her for the welfare of society. और अपने सभी योगदानों के कारण उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1956. और अब आइए देखते हैं कौन सा है आज का अगला फैक्ट हमारा. तो ये है associated 1957 से when the Export Credit Guarantee Corporation of India was founded. अर्थात आज के दिन भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना हुई थी. The Export Credit Guarantee Corporation, which was previously known by the name of Export Credit Guarantee Corporation of India, was founded on 30th July 1957. इस आइडिया को शुरू किया गया था under the expertise of T.S. Kapoor, the finance minister of India,
who was a part of cabinet of the then Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. The ECGC Limited was started with the aim of advancing exports from India by giving credit risk insurance and related services for exports. वर्ष 2014 में इन द मंथ ऑफ अगस्त इसका नाम परिवर्तित करके ECGC लिमिटेड रख दिया गया था। कॉरपोरेशन ने कई तरह के इनिशिएटिव्स शुरू किए, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग वेरियस एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम्स टू मीट द नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो एक्सपोर्ट क्रेडिट ऑफर करते हैं। टुडे दिस स्टैंड्स एज द 7th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट। कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ ECGC, such as a range of insurance covers are given to Indian exporters against the risk of non-realization of export proceeds due to commercial or political risks. इसके अलावा विभिन्न प्रकार के क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स बैंक्स को दिए जाते हैं, which enable the banks to extend timely and adequate export credit facilities to the exporters. इसके अलावा एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अर्थात MSME सेक्टर को। तो अब आइए इसके साथ देखते हैं which is our other fact of today. So this is associated with 1966 when the FIFA World Cup had concluded. अर्थात 1966 में खेला गया फीफा विश्व कप आज के ही दिन संपन्न हुआ था। The 1966 FIFA World Cup was the 8th FIFA World Cup, a quadrennial football tournament for men's senior national teams. इसे खेला गया था इंग्लैंड में from July 11th to 30th July in 1966. इंग्लैंड को चुना गया था मेजबानी करने के लिए रोम शहर में, that is the capital of Italy, in 1960 itself, over the rival bids from countries like West Germany and Spain. ये मैच खेला गया था वेम्बले स्टेडियम में, जहां इंग्लैंड ने वेस्ट जर्मनी को फाइनल मैच में हरा के अपना पहला फीफा विश्व कप खिताब जीता था और अभी तक ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया इकलौता फीफा वर्ल्ड कप खिताब भी है। इसके साथ इंग्लैंड became the 5th nation to win the event as well as the 3rd host nation to have won this event after Uruguay had won in 1930 and Italy had won in 1934. 1966 World Cup was the first FIFA World Cup held in an English-speaking country. 1966 के इवेंट में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के मुकाबले सबसे अधिक टीमें शामिल थी। ये थी तकरीबन 70 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इस गेम में पोर्चुगल और नॉर्थ कोरिया ने भी पहली बार क्वालिफाई किया था। इसके पश्चात पोर्चुगल could not qualify again until 1986, while North Korea's second appearance became possible only in 2010. और फीफा के बारे में तो आप सभी जानते हैं ऑलरेडी दैट इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ये भी हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में विस्तार से डिस्कस किया है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904 इन पेरिस, और ये भी हमें याद होगा कि इसके हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें हम तो ये है ज़ूरिक में सिचुएटेड व्हिच इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। तो अब आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है किस प्रकार टुडे इज सेलिब्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। अर्थात आज के दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2013 में द यूएन जनरल असेंबली हैड अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन 68192 जिसके तहत 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स डेजिग्नेट किया गया था। द ambition was to raise awareness of the situation of victims of human trafficking and to promote and protect their rights. Human trafficking एक ऐसा अपराध है जो किसी उद्देश्य के लिए महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का शोषण करता है। The theme for 2021 for this day is Victims' Voice Lead the Way. And the global plan of action to combat
ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स वाज अडॉप्टेड इन 2010। ये विश्व भर में सभी गवर्नमेंट्स को अर्ज करता है टू टेक अ कोऑर्डिनेटेड एंड कंसिस्टेंट एक्शन टू डिफीट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल इट्स अगली फॉर्म्स। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार तकरीबन 21 मिलियन लोग विक्टिम बन जाते हैं फोर्स्ड लेबर के ग्लोबली, और इनमें से सैकड़ों लोग ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स भी होते हैं। दिस इज आउट एंड आउट एन अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज अ वेस्ट ऑफ प्रेशियस ह्यूमन कैपिटल। इसी कारण आज के दिन का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों में, सिविल सोसाइटी में, सरकारों में ट्रैफिकिंग के खिलाफ अवेयरनेस को बढ़ाना, सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देना। तो अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट वन हियर इज who had become the first woman legislator in India, अर्थात भारत की पहली महिला विधायक कौन बनी थी। ऑप्शंस में कुछ नाम हैं सच एज ए सरोजनी नायडू, बी वी शांता, सी कादम्बिनी गांगुली और इज इट डी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। आज का दूसरा प्रश्न है when had the Hartog committee submitted its report, अर्थात हारतोक समिति जो कि एजुकेशन रिफॉर्म्स पे बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। देयर आर सम years given in the options. Kindly tell us which is the right answer. Options are A 1927, B 1928, C 1929, or will it be D 1930? The third question for today is when was the Export Credit Guarantee Corporation of India founded, अर्थात कब करी गई थी इस कॉरपोरेशन की स्थापना। ऑप्शंस है ए 1956, बी 1957, सी 1958, or is it D 1959? With this, the fourth question is the 1966 FIFA World Cup was the first and only victory for which of the following countries, अर्थात 1966 का फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश की पहली और एकमात्र जीत थी। ऑप्शंस है ए अर्जेंटीना, बी जर्मनी, सी पोर्चुगल और इज इट डी इंग्लैंड। द फिफ्थ क्वेश्चन इज which country had hosted the 1966 FIFA World Cup, अर्थात किस देश ने 1966 फीफा विश्व कप की मेजबानी करी थी। ऑप्शंस है ए चिली, बी ब्राजील, सी इंग्लैंड या फिर इसका उत्तर होगा डी स्पेन। और अब देखते हैं आज का छठा और आखिरी प्रश्न, व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व्ड, अर्थात कब मनाया जाता है या किस दिनांक को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ऑप्शंस में कुछ डेट्स दी गई हैं सच एज ए 30th जून, बी 30th जुलाई, सी 31st जुलाई और इज इट डी 30th मई। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन सभी प्रश्नों की उत्तर भी निरंतर हमें देते रहिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।